हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? यू मस्ट बी डूइंग वेल। कैसी पढ़ाई चल रही है? ओके। तो अब मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का फिफ्थ लेसन आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, द फिफ्थ लेसन आई एम गोइंग टू explain you what is that. In this we are going to learn quantitative method of sales forecasting. In the last lesson what we had studied, qualitative method of sales forecasting. So in quantitative methods, what are those? Moving average method, exponential smoothing method, decomposition method, naive or ratio method, regression analysis, econometric analysis. All these quantitative method. In this, what is required? Data are required. Without data, you cannot do quantitative method. So इस पे पूरा data पे ही काम होगा. Whatever data history is there, with that we will find out what is the forecast. So here you are seeing some table. What is this table? Let us see this. यहाँ क्या है? This is 7 years sales figure of a company. In this, what is the 3-digit figure? Okay. So 3-digit क्या है? 3-digit है. It may be quantity. It may be in rupees. It may be in dollar, in million dollars, billion dollars. कुछ भी हो सकता है. रुपीज में भी हो सकता है. तो वी आर नॉट बॉदर्ड फॉर दैट, वो किस में है, कितना है, क्या है. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द फिगर, दिस फिगर्स ओनली. ओके. सो द मूविंग एवरेज जो है ना, मूविंग एवरेज 3 years, तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम केवल लास्ट 3 years का फिगर देखते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं. सो here the figures are given from 2018 to 2024. We have to do forecast for 2025. 2025 का कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल. आप तो समझ गए होंगे. व्हाट इज दैट? सी हियर इट इज 2024 375, है ना. और उसके बाद है 325 2023 का, और ये 305. तो इन तीनों को आप ऐड कर दो, क्या होगा? हियर विल राइट इट. 375 प्लस 325 प्लस 305 divided by 3 equal to 1005 divided by 3 equal to 335. See here, so we can write 335. Then for 6 years, what will happen? You will have to add another 3 years. This, and this. What will happen here? If you add this, 3 years, 1005, already you have added 3 years. Before that, what is that? 330 plus 300 plus 275 divided by 6. It will come 1905 divided by 6. It will be almost 316. So what should be 6 years moving average? 316. Okay. And suppose you are forecasting for 2024. Okay. In this, when you are in 2023, what will you do? At the end of 2023, what is going to be the sale? That is 325. Very good. Now, 325, this one, then 305, then 330. These three you add it. What will happen? 325, 305, and 330. This will be 950, 60. 960 divided by 3. Yani that is 320. 320. So like that, you can just start going down
and you also take data just below that. So this way you can do moving average. So in 2023, you had planned for 2024 320, but you have sold 375. Okay. In 2024 now, you are planning, you are forecasting 335 for 2025. Whereas for if you are taking 6 years average data, it is 316. So what is the difference? Difference is that in moving average 6 years, you are taking history of even older data. You are taking care of those also. Whereas in this 3 years, you are only taking the last 3 recent data. So what is the trend for the last 3 years? Based on that, you are projecting for the next year. ये FMCG वगैरह में बहुत ही यूजफुल है ना. But in case of some cyclical or seasonal sales are there, no, that when agriculture machineries and all, in that older data is also taken, because it is not that industry will be booming always continuously. 4 years the industry will go up, and then fifth, 6th years industry will be down. So in those cases 6 years moving average data is taken. तो ये कहाँ पर क्या लेना है वो आपको सिचुएशन के अनुसार डिसाइड करना है. लेकिन क्या है ये जस्ट डेटा का ही हम एवरेज करके लेते हैं और उसी से फोरकास्ट करते हैं. इसमें अदर थिंग्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ, है ना. कुछ टर्बुलेंस आ गया, कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गई, कुछ आप एंटिसिपेट करो नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट विल चेंज, rules will be changed, tax, these things will be changed. Those things are not taken care of. Only the data you are taking and calculating it mechanically, mathematically, and आप उस डेटा को देते हो. तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज ये है कि बहुत ही इजी है, मैथमेटिकल है, और एक बार कैलकुलेट कर लो या कंप्यूटर में डाल दो निकल जाएगा. नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग डेटा. Smoothing method, what is that? Here you see the formula. Sales forecast for the next year is L into actual sales this year plus 1 minus L into sales forecast this year. अच्छा, अब इस साल जो आपने सेल किया 2024, suppose it is over, हाँ, in this month only 2024 is over. तो अब क्या है कि 2024 में आपने कितना सेल किया, एक्चुअल सेल into some factor is plus 1 minus that factor into इस साल का आपने जो फोरकास्ट किया था वो क्या था. इसमें जो फैक्टर है इसका जो वैल्यू लेते हैं इसी पे डिपेंड करता है आपका फोरकास्ट. ये निकालना उतना आसान नहीं है. इट इज बेस्ड ऑन सम फिगर, सम स्टैटिस्टिकल डेटा. बेस्ड ऑन दैट यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल. हाँ, मान लो एल की वैल्यू अगर 0.3 है सपोज, तो इस साल अगर सेल हुआ मान लो 100, तो 0.3 इंटू 100, आपने इस साल का फोरकास्ट किया था 120, तो 120 इंटू 0.3, तो क्या हो गया 100 इंटू 0.7, सॉरी 0.3 इंटू 100 इज 30 प्लस 0.7 इंटू 120, 0.7 इंटू 120 दैट इज 84. तो 30 प्लस 84 it is equal to 104. So this way it is found. 1 minute. I will write it somewhere so that it should be easy for you to understand. L suppose 0.3. So sales forecast is equal to 0.3 into 0.3 into actual sale plus 0.7 into sales forecast of this. In this year also we had done forecast, so उसका 70% और जो actual sale हुआ उसका 30%. So that will give you forecast for the next year. अगर L is 0.3. So for low growth industry, L is kept in between 0 to 0.5, whereas higher growth
industry it is kept 0.6 to 1. Next is decomposition method. It includes trend, growth कितना है, 5%, 10%, क्या है, उस ग्रोथ को हम लेते हैं. देन साइकिल, लाइक रिसेशन आ रहा है, अगले पिछले साल रिसेशन नहीं था, इस साल रिसेशन है, उसका कितना डाउन हो जाएगा, 10% होगा, 5% होगा, 15% होगा. देन सीजनल, कुछ फेस्टिवल इस बार है तो ज़्यादा सेल होगा कि कम होगा, या कुछ कुछ इस तरह का सीजन का है, कुछ फेस्टिवल है, क्या है, तो क्वार्टर में वो आप देख सकते हो. एंड देन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है तो क्या, इन सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सपोज दैट ग्रोथ यू आर एक्सपेक्टिंग, ये, हाँ, now you suppose growth is 10%, you will write 1.10 into, then recession, you are thinking that 5% degrowth will be there, it will be reduced to 0.9 into, then political disturbance, some disturbance may be there, so another 5%, so 0.95, into this year's sale. That will give you one figure. Okay. Now you divide it by 4. So for each quarter it will come. But in that one season, it will be more. In one quarter, the season is coming like Diwali and all. So sale will be very high. Diwali, Durga Puja and all. These festivals are there. So sale will be very high. So in that quarter, you can keep 15% extra or 20% extra. What is your historical background? Based on that, you can just rearrange the quarter. Quarter 1, quarter 2, quarter 3 may be same, but quarter 4 will be different. Quarter 1, quarter 2 and quarter 4 will be same. Quarter 3 will be different because in that festivals are there, a lot of festivals are there. Now, another is naive or ratio method. This is very simple. You just take the ratio of actual sales of this year divided out by actual sales of the last year. And what you do? You multiply it to the actual sale of this year. तो क्या है कि कितना ग्रोथ था इस साल, सेम ग्रोथ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट नेक्स्ट ईयर आल्सो विल बी देयर. और आज के जो इस साल के जो सेल है उसमें उसको मल्टीप्लाई करो. सपोज फ्रॉम लास्ट ईयर दिस ईयर वी हैव ग्रोन 10% and this year our sale is 120. तो 1 sorry, तो 120 इस साल का सेल हुआ. लास्ट ईयर से कितना ग्रोथ है, 120 डिवाइडेड बाय सपोज 100 था. तो दिस इज योर नेक्स्ट ईयर, है ना, 141, 144, है ना. So this way you can forecast next year. Regression analysis, this is very scientific way and very accurate way of taking the data and putting it in a software and taking out the forecast. It is accurate means what? The forecast is very, very accurate, you cannot say. This is very data-based figure and you are putting it in that way. See, what is the effect of particular cause? There are some dependent variable and there are independent variable. किसी के कारण से दूसरे पर क्या असर होता है, cause and effect. एक SPSS पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसको क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस.
cause and effect are taken into consideration, suitable for established brand, establish relationship between dependent and independent variable, and find regression coefficient and then project forecast. जैसे कि आप एक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो ना, क्वाड्रेटिक लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई, ए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई, सपोज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसमें ए और बी क्या है, वो कैसे निकालें? एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई क्या है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और उसमें दो कोफिशिएंट भी लगे हुए, ए और बी, दो कांस्टेंट है। वो ए और बी को निकालने का एक तरीका है, जो आप रिग्रेशन मेथड से जानते हैं। बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतना ग्राफ की तरह है, इतना बढ़ता गया घटता गया, तो क्या वाई का वैल्यू आया। बेस्ड ऑन दैट दे फाइंड आउट द कॉन्स्टेंट्स, उस कांस्टेंट से रिलेशनशिप डेवलप हो गया। और अगर आप पर्टिकुलर, आप किसी साल चाह रहे हो कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो उसमें सारे जो काउज हैं उसको आप डाल दो, है ना। अब अगले साल चूंकि गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो सेल डाउन होगा, तो कितना, क्या होगा, क्या इफेक्ट, उसको कैसे मेजर करेंगे, उसमें डिफाइन करना होगा और उसका वैल्यू देना होगा। Similarly, other factors are also put into that. And what will be the effect on the dependent variable? So it will give you direct value of the dependent variable. उससे हम नेक्स्ट ईयर का निकाल सकते हैं कि what will be the forecast. ये रिग्रेशन एनालिसिस। इकोनोमेट्रिक एनालिसिस, इसमें भी लगभग रिग्रेशन टाइप से ही है। इसमें प्रिडिक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्स और रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड दीज प्रेडिक्टर्स एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेडिक्टर्स। सी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउज हुआ और इफेक्ट क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी तो सेल डाउन होगा, कितना परसेंट होगा वो कांस्टेंट उसमें दिया है, उससे निकल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर होता है, और फिर इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी एक दूसरे के बीच में ये रिलेशनशिप है, वो भी एस्टेब्लिश करता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ऐसा हो रहा है, तो दूसरा जो वेरिएबल है उस पर भी असर हो रहा है, और इन दोनों का टोटल असर तुम्हारे सेल्स पे हो रहा है। So all these relationships are established here, and then you are finding out what is the value of sales forecast. तो आपने सेल्स फोरकास्ट कर लिया, आप क्या चाहिए, बजट चाहिए। कैसे, क्यों चाहिए बजट? बिना बजट के सेल कैसे करोगे भाई? सेल्स करने के लिए आपको बजट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। The sales budget is the key factor for the successful performance of the sales department. There are many purposes of regions of the sales budget, which include planning, coordination and control. तो सेल्स बजट क्या है? अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में खर्च करना है। ट्रैवल करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करोगे, तो इन सब में जो खर्च होता है उसका आपको एक प्लानिंग करनी होगी, फिर उसको कोऑर्डिनेट करना होगा और उस पर कंट्रोल भी करना होगा। सेल्स वॉल्यूम बजट डिराइव फ्रॉम प्रोडक्ट पर मॉडल वाइज, टेरिटरी वाइज, सेल्स पर्सन वाइज, सेल्स टारगेट वॉल्यूम ऑन मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस, reduced to area, region, national managers level. This is required to manufacture and making available the required quantities of products. जब आप प्लान कर रहे हो सेल्स बजट, तो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए
किस मॉडल के लिए आपको कितना खर्च करना होगा, किस टेरिटरी में कितना खर्च करना होगा, किस सेल्समैन के ऊपर कितना खर्च आएगा, वो अगर ट्रैवल करता है, वो अगर किसी कस्टमर से मिलता है, या अपना सेल्स प्रमोशन का कुछ बजट लगाता है, कुछ एक्टिविटी करता है, तो एक तो सेल्स पर्सन वाइज, दूसरा वो ज्योग्राफी वाइज, टेरिटरी वाइज, तीसरा वो टाइम पीरियड, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस, एंड देन एरिया वाइज, रीजन वाइज एंड नेशनल वाइज। ये फिगर हमें बनाना होता है, और दिस विल enable the company to manufacture the products accordingly, क्योंकि वो सेल्स बजट आ गया, इतना रेवेन्यू आएगा। सेल्स बजट तो तभी अप्रूव होगा ना जब रेवेन्यू उससे बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो उस बेसिस पे वो प्लांट फिर प्रोडक्शन प्लान करती है। अदर वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स बजट आर सेल्स एक्सपेंसेस बजट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बजट ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स एक्सपेंसेस बजट, इसके बाद आपको जो practically what spend you are going to spending the sales budget, that you have to control it, and that is very very important. एलोकेशन कैसे करते हैं सेल्स बजट का? Sales managers are required to decide expenditure level for each item of selling expenses, method of allocation, allocating money. आपको डिफरेंट वे में इसको एलोकेट भी करना होगा। कैसे करोगे? एक तो सेल्स वॉल्यूम का परसेंटेज ले लेते हैं कि अगर इतना सेल्स वॉल्यूम आप करते हो तो उसका इतना परसेंट ट्रैवल में, एडवर्टाइजमेंट में और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी में करना है। तो अगर आप किसी एरिया के लिए प्लान करते हो, 100 क्वांटिटी आप प्लान कर रहे हो, तो उसका कितना परसेंट, 100 क्वांटिटी में कितना आपको रेवेन्यू आएगा? मान लो 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़, 100 लाख, तो उसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस में कितना परसेंट जाना चाहिए, देन उसमें एडवर्टाइजमेंट में कितना परसेंट जाना चाहिए, और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी में कितना परसेंट जाना चाहिए। दिस ऑल यू हैव टू डिसाइड इट। एग्जीक्यूटिव जजमेंट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस सेल्स एग्जीक्यूटिव। और उसको या तो फिर आप ऐसे एलोकेट कर सकते हो कि जो आपका सबसे स्किल्ड पर्सन है आपके डिपार्टमेंट में, उन्हीं से आप राय ले लो, उन्हीं से आप एलोकेशन ले लो कि वो कहता है तो उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड ऑलमोस्ट ही इज करेक्ट। So as per him, you are generally the boss of the department. Sales manager or area manager or regional manager will decide for the area. Area manager will decide territory. Like that, they will be deciding. Territory manager will decide for the sales officer, the lowest level. So for each person, for each territory, for each area, it will be decided what budget is there for sales. कितना खर्च करना है। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क, सेल्स वॉल्यूम, टारगेट डिसाइडेड। सबसे पहले तो आप सेल्स वॉल्यूम का टारगेट डिसाइड करते हो कितना सेल करना है, फिर उसके बाद टास्क और एक्शन डिसाइडेड टू अचीव दिस सेल्स वॉल्यूम, फिर उसके बाद टास्क डिसाइड करते हैं कि क्या हमें करना है टू अचीव दिस। द कॉस्ट एडेड अप टू फाइंड दैट वेदर द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड और नॉट। और सभी कॉस्ट को ऐड कर दो और तब सोचो कि उससे प्रॉफिटेबिलिटी निकल रही है कि नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इतना सेल्स बजट लगाना चाहिए कि नहीं, इसका जस्टिफिकेशन चाहिए। देन रिव्यू द बजट एंड कंटिन्यू टिल ऑल मार्केटिंग मैनेजर सेटिस्फाइड। उसको रिव्यू करो, फिर चेंज करो, देन अगेन रिव्यू इट, देन अगेन चेंज, एंड सी दैट हाउ इज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रोसेस क्या हुआ, सेल्स बजट प्रोसेस क्या हुआ? रिव्यू द सिचुएशन, क्या है अभी सिचुएशन वो आप समझ लो, उसके अनुसार ओनली यू हैव टू डू द सेल्स बजट एलोकेशन। देन कम्युनिकेशन विथ ऑल फील्ड सेल्स मैनेजर एट ऑल लेवल्स, सभी के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेल्स मैनेजर मतलब क्या हुआ, टेरिटरी मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ऑल दिस communication should be very perfectly all right. At all level you have to do a study, and then only you can find out what is the budget required. Preparation of subordinate budget, then
every manager will plan the budget for his subordinates. अगर टेरिटरी मैनेजर है तो वो अपने हर एक सेल्स ऑफिसर के लिए, अगर उसके अंदर में 2 सेल्स ऑफिसर, दोनों के लिए वो प्लान करेगा कि क्या सेल्स बजट होगा, उसका ट्रेवल एक्सपेंसेस कितना होगा, एडवर्टाइजमेंट कितना होगा, लोकल लेवल में सेल्स प्रमोशन में, कोई मेला एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना तो वो क्या होगा, या फिर अगर सेल्समैन को इंसेंटिव देना है, कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना है टू इंक्रीज द सेल, तो वो क्या होगा, दैट सबऑर्डिनेट वाइज यू हैव टू प्लान. देन आफ्टर ऑल दिस, आपने ईच एंड एवरी पर्सन का प्लान किया, ईच एंड एवरी एरिया का प्लान किया, रीजन का प्लान किया, एंड देन यू गेट द अप्रूवल. उसके बाद बाकी सभी डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्म करो, कम्युनिकेट टू प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, है ना, प्रोडक्ट, ये मेटलर्जी, ऑल दैट डिपार्टमेंट यू विल हैव टू डू मटेरियल्स. सो उनको क्यों बताना, उनको बताना होगा देखो सेल्स वाले इतना खर्च कर रहे हैं एंड दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक दैट दे आर गोइंग टू सेल दिस मेनी. तो जब इतना खर्च हो रहा है तो आपको इतना प्रोडक्ट देना पड़ेगा, और इसके लिए आप प्लान करो. प्रोडक्शन वाले ऐसे प्लान करेंगे, फाइनेंस वाले प्लान करेंगे कि भाई इतना पैसा इनको चाहिए तो इतना रेवेन्यू से हमें इतना पैसा निकाल कर सेल्स के लिए रखना है. दैट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. Similarly, materials, that purchase material, raw material and all, they will plan accordingly. And HR, finally HR को तो मालूम होना चाहिए कि कौन बंदा कितना खर्च कर रहा है और कितना रेवेन्यू ला के दे रहा है. थैंक यू वेरी मच. हाउ वाज दिस? आई थिंक यू मस्ट हैव लाइक्ड इट. अपना कमेंट आप जरूर डालना, एंड अगेन आई विल कम विथ अनदर लेसन. थैंक यू.